किसी ने सही कहा है कि फेलियर इज़ नॉट अपोजिट टू सक्सेस, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सक्सेस। बेसिकली हम लोग कई बार जब अपनी लाइफ में डिसअपॉइंटेड होते हैं या फिर हमको जब एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिलता तो हम बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं। हम ऐसा फील करने लगते हैं कि आई एम जस्ट अ पीस ऑफ ट्रैश और आई एम नॉट केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग इन माई लाइफ। एंड ये फ़ील करना बहुत ही लाजमी है जब आप एक ऐसे एज में हो जहाँ पे आपको मल्टीपल चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है और जो कि आपके टेक्स्ट बुक, आपके पेरेंट्स, आपके गार्जियन, आपके टीचर्स ने नहीं समझाई होती है। सो हाय देयर, if you know me, so welcome back to the channel, and if you're new to the channel, welcome to the channel and make sure to subscribe to the channel to be our family. ये जो वीडियो होने वाली है ना, ये मैं अपनी जो कुछ मिस्टेक्स हैं, कुछ माइंडसेट शिफ्ट हैं जो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। बेसिकली आई एम समवन हु इज़ वेरी क्वालिफाइड फॉर दिस वीडियो, और जो टॉपिक्स मैं बोलने वाली हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस। आई हैव नो स्क्रिप्ट हेयर। मैं जो भी बोलूँगी वो डायरेक्ट कैमरे में ही रिकॉर्ड होगा। सो इट्स जस्ट अ वेरी रॉ वीडियो। सो हियर मी आउट। If you are someone who feel like I am feeling very demotivated, I'm feeling very bad, क्योंकि अभी ये जो टाइम है ना, बोर्ड एग्जाम्स आर ऑन योर हेड। सेमेस्टर एग्जाम्स तो मतलब आते जाते रहते हैं, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर ऑल्सो देयर, एंड there is a high probability that you are not feeling fine. I have learned the new lessons from my life, and also I have learned new patterns to live my life easily without bothering myself. And I'm going to share this in this video. So, the first and very big guilt that I was having in my heart is that I felt like I have wasted all the money that my parents had spent on my education, and I am just, uh, I just felt that I'm not a good child. My parents deserve a better child, and that one guilt, that one disappointment in my heart had like crushed my confidence, my my I don't know what to say, but it has killed me in some way. And guilt number two was that I felt like I have wasted a lot of time in my life figuring out that what am I capable of doing, and no clue of what to do after need. And I had multiple opportunity to do this and that, but I was not really sure. Third, and I don't know, like most troubling one, that I had that fear of failure. I was someone who in school was kind of average only, not the topper kind of, not the like backbencher also. I was kind of average student who's pretty much okay marks wala. But the fear of failure had crushed me. Every time I sat in an exam and I didn't qualified it, I felt like कि bro. And I don't know, I cannot explain that feeling to someone else. Like I am not capable of explaining what I felt inside. And fourth, also I've realized that you are in your peak years after your school, till you get your first job or the dream job of yours. You are in your peak years, you are in your peak time. So be very conscious about the people you are choosing in this age group. And I mean, not in a friendship way, I'm talking in overall, like the family member you are going to get involved with, the people you are sharing your dreams with, your friend circle, or whatever romantic relationship you are looking forward to. You need to be very conscious of the people you are choosing in your life, because after few months or years you will feel and see it that you are somewhere reflecting their behaviors, you are somewhere reflecting their mindset. So if you are surrounded by people who do not match your um, goals or your mindset, you need to take some maintain some distance. And it is not to feel that you are superior than them, it is just because there is less amount of time and you have more work to do. So these were the major problem that I was having in my heart. And how did I overcome with that? So coming to the first thing, that I was feeling that I'm not a good child, and the only reason because I was feeling that I felt like I have wasted a lot of money of my parents, and I don't know how to ask for more money. Like my parents were saying nothing to me, that they were like okay.
So I had that thing in my mind that I'm not going to ask for money to my parents, and I had to continue my studies. So what I did, I just started a side income. Like I started giving tuitions at my home, and that was the worst phase. Like I was not talking to anyone. Like 10 or 12 hours, I was just quiet. I'm not talking to someone. And like I was always surrounded by people, but I don't feel like to talk to people. So I start giving tuition, and with a kid to many kid, I grew up. And when I got my salary at the end of month, I felt like now I'm capable of. I mean, like manage my own. What you say? My own खर्चा. Okay, so I felt like कि भाई अब तो मैं अपने कम से कम अपने खर्चे तो उठा सकती हूँ, मुझे जो भी पढ़ाई में चाहिए या फिर जो भी जैसा छोटे मोटे खर्चे. So first I remember the first salary I got at my mother, and I was feeling so good at that time, क्योंकि फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि चलो फाइनली मैंने कुछ तो किया इनके लिए. एंड फिर वहाँ से वो जो फीलिंग थी ना कि आई एम अ बैड किड, आई एम डूइंग दिस एंड दैट, वो थोड़ी थोड़ी हटने लगी, बिकॉज आई हैव स्टॉप्ड आस्किंग फॉर मनी टू माई पेरेंट्स. मतलब अगर बहुत ज़्यादा चाहिए होता था, ज़्यादा पैसे की जरूरत होती थी, तो मैं बोल देती थी. अदरवाइज आई वॉज एबल टू मैनेज माई ओन जो भी एक्सपेंसेस थे. पॉइंट नंबर 2 वाज दैट आई वाज फीलिंग दैट कि मैंने अपनी लाइफ का बहुत टाइम वेस्ट कर दिया. एंड फिर मैंने काफ़ी टाइम के बाद ये चीज़ सीखी कि यार देखो, सबका अपना अपना टाइम होता है, ठीक है. समय से पहले और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है. आप जितनी मेहनत करोगे आप उतना ही रिज़ल्ट पाओगे, बट वो भी उसका भी एक टाइम जो होता है ना, वो निश्चित होता है. आपको उससे पहले कुछ नहीं मिल सकता है. और ये एक्सेप्टेंस मुझे बहुत लाइट फ़ील कराने लगी. आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम मुझे बहुत लाइट फ़ील होने लगा. सो 2 ऑफ माई प्रॉब्लम वर सॉल्व्ड, बट अभी थर्ड वन बचा हुआ था, फियर ऑफ फेलियर. एंड दिस इज़ द मोस्ट हॉरिफाइंग फॉर मी, क्योंकि in my childhood I was ready to do everything, but I was never ever ready for failing in life. And I was not just failing in exams, I was failing in life. I was constantly seeing it that my mental health is going down. And in every month, by every day, I was feeling कि भाई अगर ऐसे ही चलते रहा ना, तो it is very hard for me to survive more than 5 years. And after that I hit a very dark period of my life. और फिर वहाँ पे मुझे समझ में आया कि अगर आपके पास लाइफ है, अगर आप मेहनती हो, आप ईमानदार हो, आपके पास जो भी स्किल है, अगर आप ज़िंदा हो, तो आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ उखाड़ लोगे. अगर आपके अंदर कुछ भी करने की भूख है, तो आपको अपने आप को किसी और से कंपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ हर किसी की अपनी अपनी जर्नी होती है. एंड किसी को भी ऐसा नहीं है कि किसी को भी प्लेट में ला के दे दिया गया. हाँ, कुछ एक्सेप्शनल लोग होते हैं जिनको प्लेट में ही सब कुछ मिल जाता है, बट यार उसका मज़ा भी नहीं है लाइफ में. सो आई अंडरस्टूड दैट कि माई लाइफ इज़ मोर वैल्यूएबल दैन एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम. एंड I guess smiling every day, waking up with a positive attitude matters more than waking up with a degree. And this acceptance, this hard truth of life, ये सीखने में मुझे बहुत टाइम लग गया. आई विश मैंने ये जल्दी सीख लिया होता तो बहुत अच्छा होता है मेरी लाइफ में, बट देर आए दुरुस्त है. एंड आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ, क्योंकि अभी इस एक्सेप्टेंस के साथ आई एम वेरी मच फोकस्ड ऑन टू माई प्रेजेंट. आई एंड इसके ड्रॉबैक ये है ना कि भाई मुझे डर लगना ही बंद हो गया. मतलब आई डोंट फील मच एक्साइटेड, और आई डोंट फील मच बैड. आई मीन आई डोंट नो, पता नहीं क्या ये साधु सन्यासी वाली बात कर रही हूँ मैं, बट लिटरली जो आउटकम होता है ना किसी भी जर्नी का, उससे मैं थोड़ा सा डिटैच हो चुकी हूँ. एंड कुछ चीज़ें होती हैं लाइक जो बचपन के सपने होते हैं 8-10 साल की उम्र में जो देखे होते हैं, या फिर 12-15 साल की उम्र में जो देखे थे, अगर वो अब कंप्लीट होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ज़्यादा खुशी होती है. बट एज सच वो एक्साइटमेंट नहीं बची हुई है लाइफ में. वो एक स्टेबल ग्राउंड मिल चुका है कि अगर हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है, कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे. चौथा, जो मैंने लोगों के बारे में बोला कि यू शुड बी वेरी कॉन्शियस ऑफ द पीपल यू आर सराउंडेड विद, बिकॉज यू आर सम योर लाइफ एंड योर गोल्स आर सम टोटल ऑफ 5 पीपल यू आर सराउंडेड विद. एंड ये चीज़ मैं मजाक में नहीं बोल रही हूँ. इफ़ यू आर सराउंडेड बाई अ पर्सन हु इज़ वेरी शॉर्ट टेम्पर, हु इज़ वेरी वायलेंट, वेरी वर्बली अब्यूसिव, यू विल फील लाइक कि तुम कितने भी शांत इंसान हो, तुम कितने भी अच्छे इंसान हो, तुम्हारे अंदर कुछ टाइम के बाद वो एंगर इश्यूज़ आने लगेंगे. तुम बहुत टाइम बाद वो तुम वोकल होने लगोगे, तुम अब्यूज़िव होने लगोगे फ्रस्ट्रेट होने के टाइम. सो ये सब बहुत ज़रूरी है. और यार देखो, मैं एक बात बता रही हूँ, जब आप काबिल जो इंसान होता है ना, उसके हज़ार रिश्ते होते हैं. मतलब अगर आपसे किसी ने 2 साल तक बात नहीं करी एंड तुम काबिल हो ना, तुम किसी काम आ सकते हो उनके, वो तुमसे 10 पुश्त पीछे के रिश्ते जोड़ के आ जाएंगे, तुमसे मिलने, तुमसे बात करने, तुमसे रिश्ता रखने.
बट अगर आप काबिल नहीं हो तो आपके अपने भी आपके नहीं होते हैं। ये बहुत हार्ड टू सॉलो पिल है, बट इट इज़ ट्रूथ ऑफ लाइफ। सक्सेस आपको हज़ार रिश्ते बनवा देता है, हज़ार दोस्त बनवा देता है, हज़ार बिजनेस पार्टनर और पार्टनर इन क्राइम दिला देता है, बट कहते हैं ना कि फेलियर्स में बहुत कम लोग आपके साथ होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब आप अपनी लाइफ में स्ट्रगलिंग फेज़ में हो तो आप ऐसे लोगों से सराउंडेड हो जो आप में ट्रस्ट करते हो, जो आप में बिलीव करते हो, जो आपको मोटिवेट करते हो कि कोई बात नहीं, अभी एक बार और ट्राई करके देखो। क्योंकि एक पॉइंट के बाद आपको अपनी लाइफ में फ़ील होने वाला है कि यार अभी गिव अप कर देते हैं, अभी नहीं हो रहा, और वहाँ पे सिर्फ एक पुश काफ़ी होता है आपके लाइफ में कि नहीं, आई बिलीव इन यू, यू नीड टू ट्राई मोर। So, yeah, all just that. And whoever is watching this, let me just summarize कि यार जब तुमने अपना स्कूल फिनिश कर लिया, अगर तुमने ड्रॉप लिया कॉलेज या जो भी लिया है, ट्राई टू गेट फाइनेंशियल फ्रीडम एज सून एज पॉसिबल। चाहे वो छोटी सी ही रकम क्यों ना हो, बट तुम्हारी अपनी कमाई हुए जो पैसे होते हैं ना, वो तुम में एक अलग सा चेंज लेके आते हैं, वो तुमको एक अलग पहचान दिलाते हैं, तुम अपनी रिस्पेक्ट करने लग जाते हो, तुम अपने टाइम की वैल्यू करने लग जाते हो, और तुम एवे ही कहीं भी अपने आप को बर्बाद नहीं करते हो। जब आपको अपनी वैल्यू पता होती है ना, तो आपको कोई सामने से नहीं कुछ बोल के जा सकता है, और आप अपने लिए एक बाउंड्री क्रिएट करने लगते हो। यू डू नॉट अलाउ पीपल टू मेस विद योर लाइफ। पॉइंट नंबर 2 इसकी, यार देखो, फेलियर्स एंड सक्सेस ये आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में आपका कर्म करना। तो अपना कर्म ईमानदारी से करिए, और इतनी शिद्दत से करिए कि जब आपका रिज़ल्ट आए तो आपका रिज़ल्ट चाहे पास या फेल जो भी हो, आपको ये फ़ील हो कि आपने अपना 100% दिया था। बस ये जो फीलिंग है ना 100% देने वाली, सारा गेम सिर्फ इसी का है। अगर आपको ये फ़ील हो रहा है कि आपने 100% दे लिया है, अगर आप वो एग्ज़ाम नहीं भी क्लियर करते हो, आप वो काम नहीं भी कर पाते हो ना, तो भी आप उस चीज़ से, उस एग्ज़ाम से, उस पैशन से मूव ऑन हो सकते हो। अदरवाइज़ आपके बैक ऑफ द माइंड वो चीज़ चलती रहेगी कि एक और ट्राई दिया होता, 2 और ट्राई दिया होता। तो जस्ट दैट। एंड तीसरी चीज़ कि यार, जीवन में किसका क्या उद्देश्य है, किसको क्या करना है, ये सब निर्धारित है। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सेस में परेशान ना करिए। ये आपके बनने की उम्र है, और अगर इस उम्र में आपको ये फ़ील हो रहा है कि यार मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बहुत डिमोटिवेटेड फ़ील हो रहा है, मुझे बहुत एंशियस फ़ील हो रहा है, मुझे बहुत लेफ़्ट बिहाइंड फ़ील हो रहा है, तो ये सब अच्छी चीज़ है। हाँ, ये चीज़ आपको शॉर्ट टर्म में बहुत ज़्यादा परेशान करती है, लेकिन यही परेशानियाँ कारण बनेगी। आप स्टैग्नेंट नहीं बैठोगे, आप कंफर्ट ज़ोन में नहीं लाई करोगे, आप कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में फ़िगर आउट कर ही लोगे। और चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि यार, लोगों का आपके जीवन में प्रभाव पड़ता है, और ये सच है। मैंने ये चीज़ फ़ील करी है जब से मैंने ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है जो मेरे अगेंस्ट में थे, जिनकी बातें सुन के मुझे और डिमोटिवेट फ़ील होने लगता था, मुझे और लो फ़ील होने लगता था। तब से आई एम हैप्पी वट एवर इज़ गोइंग ऑन इन माई लाइफ। आई फील लाइक कि मेरा अपने मूड पे कंट्रोल है। ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई कुछ भी आ रहा है, रेंडमली आ रहा है, अपने ऑफिस का भड़ास निकाल रहा है, अपने घर की भड़ास निकाल रहा है। किसी ने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ कुछ होगा, उन्होंने बता दिया, एंड आई एम फीलिंग बिट लो। क्योंकि मेरे लिए मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आई हैव मल्टीपल टास्क टू डू इन माई लाइफ, और मुझे वो सब टाइमली फिनिश करना है। And I believe that you are going to live your dream life. Just have patience and work so hard and smart that आपको बस कंटेंटमेंट फील हो अपनी लाइफ में। एंड यार देखो, एक टाइम आएगा जब सब कुछ सही हो जाएगा, फिर सब कुछ फिक्स हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा। एंड जो लोग आज आपको कंप्लेन कर रहे हैं, जो लोग आज आपको नीचा दिखा रहे हैं, वही लोग आपके अराउंड घूमेंगे कि भाई मेरा ये काम करा दो, ये करा दो, वो करा दो। तो आप अपने आप में संतुष्ट रहिए, और अपने जीवन में अपने आप को सेंटर ऑफ योर लाइफ रखिए। किसी और को अपनी लाइफ का मेन कैरेक्टर कभी बनने मत दीजिए। या आपकी ज़िंदगी है, आप खुद इसको डिज़ाइन करिए। आपको जो पार्ट पसंद नहीं आ रहा उसको चेंज करो ना यार, तुम्हारी ही ज़िंदगी है, ठीक है। और जितना आप लोगों से डिटैच होगे, आपको सोशल लेवल पे लोगों से डिटैच नहीं होना, आपको
मेंटल लेवल पे बहुत डिटैच होना है कि मुझे लोगों से बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा, उनकी अच्छी बातें मैं सुन रहा हूँ, बुरी बातों का फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम दिस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी प्यारी सी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें एंड आई बिलीव आपकी जो भी ड्रीम लाइफ है, यू आर गोइंग टू मेक इट हैपन।